नमस्कार, मेरा नाम हरीश कुमार है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नगवाई का छात्र हूँ। आजकल अटल इनोवेशन मिशन के तहत एक एटीएल स्पेस चैलेंज चला हुआ है, जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया है। इसमें हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है एक्सप्लोर स्पेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज से कई सालों पहले बहुत से स्पेस मिशन हुए, जिनमें जो भी रोवर किसी प्लैनेट पर गए तो वो रोवर वहाँ से वापस सैंपल लेकर पृथ्वी पर नहीं आ पाए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जो सैंपल वहाँ पर उन्होंने कलेक्ट किए होते हैं, उन सैंपल का जो एनालाइज होता है वो पृथ्वी से होता है, लेकिन इनका जो हम एक प्रॉपर एनालाइज नहीं कर पाते। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने इसके ऊपर स्टडी किया, हमने इसके ऊपर रिसर्च वर्क किया कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को इसका सलूशन निकाल सकें। इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसका नाम है कार्तिकेय रोवर। मेरा जो इस प्रोजेक्ट में रोल है वो है, मैंने जितने भी कनेक्शंस हुए हैं, चाहे वो सेंसर्स के साथ है, चाहे वो आर्डिनो के साथ है, मतलब कि हर तरह के कनेक्शंस मैंने इस प्रोजेक्ट में दिए हैं। उसके साथ जो हमने जितने भी पार्ट्स इसमें 3D प्रिंटर से बनाकर लगाया है, वो सारे भी मैंने 3D प्रिंटर में बनाया है। 3D प्रिंटर में हमने सबसे पहले तो जो वैक्यूम फ़ैन है, जो हमारे इस प्रोजेक्ट में वैक्यूम फ़ैन लगाया है, जो कि सैंपल को सक करके रोवर में स्टोर कर रहा है। तो उसके लिए हमने एक वैक्यूम फ़ैन बनाया है, वो भी 3D प्रिंटर से बनाया गया है। उसके बाद हमने एक आर्म बनाया है जिसके ऊपर ड्रिल लगी हुई है, वो भी हमने 3D प्रिंटर से ही बनाया है। और हमने इसमें बहुत से फीचर ऐड किए हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे मेरे टीम मेंबर मिस्टर विवेक। Hello everyone, I'm Vivek Dugal, student of Cambridge International School Mall Kullu and the team member of Karthikeya Rover. A month ago, I was told about the ATL Space Marathon by my teachers, and then with the collaboration of our school as well as the Nagwai school, we came up with the ATL team, the Karthikeya Rover. We were told all the topics that were coming in the ATL Space Challenge and thought of them thoroughly. But then we chose the topic exploration. As we all know, from the past few years, a lot of space missions have been sent to different planets to analyze them. Many rovers such as Opportunity and Perseverance have been sent on Mars and gathered data about it. But the problem that we are facing right now is that those rovers are not able to send the sample back, and their analysis of the sample is not also very good. Also, if we are sending any other mission back on Mars to get the samples back to the Earth, it's quite time consuming and also very costly. So, we thought about this problem and thought of the solution and built the Karthikeya rover. I was given the role in my team about finding the information about space as well as about designing the rover. I took the help of internet as well as by many teachers to get this information. By doing so, we were able to make the Karthikeya rover. Now, I would like to tell you the working of our Karthikeya rover. As soon as the lander will land on the surface of Mars, our Karthikeya rover will detach itself from the lander. Then, with the help of its special designing legs that are inspired from grasshopper, it will easily move any sort of rough terrain and can avoid any sort of obstacle with the help of the ultrasonic obstacle avoiding system. Further, it can be controlled manually from the control station with the help of RFID module as well as Bluetooth module. We are having a special radiation protective sheet around it, which doesn't allow any sort of radiation to go inside it and harm the software. Then with the help of the cameras mounted on the rover, we can get the videos as well as photos of the Martian terrain and its topography, and with the help of many sensors such as optical and radiometric sensor, we can easily get the information about the soil and get the right sample to be drilled.
Then we are having a drill system. A drill system is controlled by a RFID module or a Bluetooth module from the control station. It allows the rover to drill the sample that may be hard, and then we are having a vacuum system that sucks all the samples in it and stores it safely inside a capsule. Then many capsules will further be stored inside a storage room. We will apply force sensor under the storage room, and when the force upon the force sensor is equal to the force coded inside it, it will send the storage room to our missile. Further, our missile will ignite itself and move towards the Martian orbiter which is orbiting the Mars. Then the Martian orbiter can redirect its course towards the Earth and send the samples on the Earth. There, the samples can be safely analyzed. Now, I would like to pass on to my next team member, Khemraj. नमस्ते, मेरा नाम खेमराज है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नगवाई का एक छात्र हूँ और टीम कार्तिकेय रोवर का एक सदस्य। इस टीम में मुझे एज अ प्रोग्रामर काम करने का मौका मिला। मुझे यह प्रोग्रामिंग का काम मेरे टीम के अन्य 2 सदस्यों द्वारा दिया गया, क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बहुत अच्छा खासा नॉलेज है और मैं छोटे छोटे प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखा करता हूँ। इस सफ़र में हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे एक टीम में मिलकर कैसे काम किया जाता है, और हमें एक दूसरे से ही बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मैं आपको उन कंपोनेंट और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जिनकी मदद से हमने कार्तिकेय रोवर को बनाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर पर। एक माइक्रो कंट्रोलर एक तरह का सर्किट बोर्ड होता है जिस पर बहुत से रजिस्टर, ट्रांजिस्टर और आईसीज लगी होती है। ये मिलकर माइक्रो कंट्रोलर्स में लगे जितने भी डिवाइसेस, सेंसर्स, मोटर्स होती है उन सभी को कंट्रोल करता है। कार्तिकेय रोवर में हमने आर्डुइनो यूएनओ को एज अ माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है, जो कि इसके पार्ट्स को और उन पार्ट्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो कि है मोटर्स। अब मोटर्स में हमने टीटी गियर मोटर का यूज़ किया हुआ है, जो कि टायर के साथ अटैच्ड है। अब मोटर्स को चलाने के लिए हमने एक मोटर ड्राइवर का यूज़ भी किया है, जो कि है L298N। ये मोटर्स को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमने 2 सर्वो मोटर का यूज़ भी किया हुआ है, जिसमें से एक ड्रिल आर्म को मूवमेंट देने के लिए यूज़ किया हुआ है और दूसरा अल्ट्रासोनिक सेंसर को रोटेशन देने के लिए यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा हमने ड्रिल बिट को घुमाने के लिए भी एक 5 वोल्ट मोटर का यूज़ किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर, जो कि है सेंसर्स। सेंसर्स में सबसे पहले हमने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया है, जो कि रोवर को ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग में हेल्प करेगा। इसमें आपको 2 ट्रांसड्यूसर देखने को मिलते हैं। इनमें से एक ट्रांसड्यूसर ट्रांसमीटर होता है और दूसरा ट्रांसड्यूसर ट्रांसरिसीवर होता है। ट्रांसमीटर जो है एक अल्ट्रासोनिक साउंड वेव भेजता है। अगर रोवर के सामने कोई ऑब्स्टेकल आता है तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स उससे टकराकर ट्रांस रिसीवर के पास चली जाती है। इस तरह एक अल्ट्रासोनिक सेंसर डिस्टेंस मापकर उस रोवर को दूसरी तरफ मोड़ देगा। बात करें दूसरे सेंसर की, तो दूसरा सेंसर हमने इसमें फोर्स सेंसर लगाया है, जो कि रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम के पास लगा हुआ है। इसमें जब वैक्यूम सिस्टम जो है सैंपल को स्टोर करेगा रॉकेट में, तो रॉकेट का जो वज़न है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और हमने फोर्स सेंसर में वेट लिमिट लगा रखी है, जिसकी वजह से उस वेट लिमिट से ज़्यादा वज़न होने पर वो रॉकेट पृथ्वी की ओर लॉन्च हो जाएगा। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो हमारा पावर सप्लाई है। अब पावर सप्लाई में हमने 9 वोल्ट की बैटरीज़ का यूज़ किया हुआ है, जो कि हर पार्ट को पावर देगी। बात करें नेक्स्ट कंपोनेंट की, तो वो है वैक्यूम सिस्टम। और वैक्यूम सिस्टम क्या करेगा? जब ड्रिल जो है सैंपल को ड्रिल करके वापस अपनी जगह जाएगी, तो हमारा जो वैक्यूम सिस्टम है वो अपने आप ऑन होगा। ऑन होने के बाद जो सैंपल को ड्रिल किया हुआ था उस सैंपल को
वैक्यूम सिस्टम सक करके एक रॉकेट में स्टोर कर देगी जो रोवर के बैक साइड को है। तो चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं जो कि है ड्रिलिंग सिस्टम। अब ड्रिलिंग सिस्टम कैसे काम करेगा? जो ड्रिलिंग सिस्टम है उसमें एक ड्रिल लगी हुई है जो कि पत्थर और मिट्टी में ड्रिल करने का काम करेगी। ड्रिलिंग कंप्लीट होने के बाद ड्रिल अपनी जगह वापस चले जाएगी और इससे आगे काम शुरू होता है वैक्यूम सिस्टम। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर जो कि है रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। अब रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम कैसे काम करेगा? जो वैक्यूम सिस्टम है जब सैंपल को सक करेगा और रॉकेट में स्टोर करेगा तो उस रॉकेट का वज़न धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हमने फोर्स सेंसर लगाया हुआ है और उसमें एक वेट लिमिट लगाई हुई है जिसकी वजह से वेट लिमिट से ज़्यादा वज़न होने पर वो रॉकेट पृथ्वी की ओर लॉन्च होता है। बात करें नेक्स्ट कंपोनेंट की तो वो है HC-01 ब्लूटूथ मॉड्यूल। अब इस मॉड्यूल का काम क्या होगा? जो रोवर है उसकी एक्टिविटी, उसकी मूवमेंट और ड्रिल आर्म को मैनुअली कंट्रोल करने के लिए इस HC-01 ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज़ किया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे जो कि है 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर में हमने प्रूसा की तरफ से आने वाला प्रूसा i3 Mac का यूज़ किया हुआ है जिसमें हमने फिलामेंट यूज़ की है पॉलीलैक्टिक एसिड फिलामेंट, जिसकी हेल्प से हमने ड्रिल का एक आर्म तथा वैक्यूम सिस्टम का एक इम्पेलर तैयार किया है। तो कुछ इस तरह से हमने कार्तिकेय रोवर को बनाया।